आप देख रहे हैं TNB। नमस्कार, TNB में आपका स्वागत है। इस वक्त बंगाल से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि बीजेपी के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट मुकुल रॉय ने अब भाजपा को छोड़कर टीएमसी का दामन थाम लिया है। जी हाँ, सही सुना आपने, मुकुल रॉय ने जो है अब टीएमसी ज्वाइन कर लिया है और ये जो है उन्होंने ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी की उपस्थिति में ज्वाइन कर लिया है। साथ में उनके बेटे ने भी जो है अब टीएमसी का दामन थाम लिया है। आपको बता दें कि मुकुल रॉय एक जाने माने हस्ती है। आपको बता दें कि वो जो है सबसे पहले वो कांग्रेस करते थे, उसके बाद उन्होंने टीएमसी किया था और टीएमसी में उन पे पार्टी के अगेंस्ट गतिविधियों को लेकर 6 साल के लिए उनको पार्टी से बाहर निकाल दिया गया था, जिसके बाद उन्होंने बीजेपी का दामन थामा था 2017 में और जिसके बाद से वो बीजेपी में ही काम कर रहे थे। उनके साथ उन्होंने अपने बेटे को भी बीजेपी ज्वाइन करवा दिया था, जिसके बाद 2020 में उनको बीजेपी की तरफ से नेशनल वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया था। और इसके बाद और अभी जो है ऐसी खबरें सामने आ रही कि मुकुल रॉय ने बीजेपी को छोड़ अब टीएमसी का दामन थाम लिया है। आपको बता दें कि इसको लेकर ममता बनर्जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखी है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी और मुकुल रॉय तीनों मौजूद रहे हैं। और इस दौरान ममता बनर्जी ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। মুকুলকে আমরা ও আমাদের ঘরেরই ছেলে, ঘরে ফিরলো, এই জন্য আমরা অভিনন্দন জানাচ্ছি। পার্থ চ্যাটার্জি আমাদের সেক্রেটারি জেনারেল, তিনি তাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন এবং স্বাগত জানিয়েছেন। সুব্রত বক্সি, সুব্রত মুখোপাধ্যায়, জাভেদ খান, ফিরাদ হাকিম সবাই আছে, সব আমাদের সহকর্মীরা। আমি মুকুলের যদি কিছু বলার থাকে মুকুলকে বলবার জন্য অনুরোধ করব। আমাদের দল শক্তিশালী দল। আমরা যারা ইলেকশনের সময় দলের সাথে খুব গদ্দারি করেছে, মুকুল কিন্তু ইলেকশনের সময় একটি কথাও বলেনি দলের বিরুদ্ধে। দিদি, আই হ্যাভ মুকুল আমাদের দলে এসছে, মনে রাখবেন মুকুল কিন্তু ইলেকশনের সময় আমাদের দল বিরোধী একটি কথাও বলেনি। যারা ইলেকশনের সময় গদ্দারি করে বিজেপির হাত শক্তিশালী করতে গেছে এবং গদ্দারি করেছে তাদের আমরা নেব না, এটা আমাদের দলের সিদ্ধান্ত। মনে রাখবেন চরমপন্থী এবং নরমপন্থী আছে, কিছু লোক আছে যারা হয়তো মুকুলের সাথে অনেকে গেছে, মুকুল চলে আসলে তারা নিশ্চয়ই চলে আসতে চাইবে, সেটার ব্যাপারে দল সিদ্ধান্ত নেবে। কিন্তু যারা গদ্দারি করে চরমপন্থী অনেক বেশি দলকে নিম্ন রুচির পরিচয় দিয়েছেন তাদের আমরা নেব না। দিদি 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 apart from this, দিদি apart, I am not asking you. Now everybody is facing that it is nothing new. So from 7 years it is going on. Let them to settle the case immediately. Why 7 years, 8 years? And it is not that Sarada Narada, Trinamool Congress is not at all responsible for this. It is the BJP party. Ask them, where is the 35,000 crores for the vaccination rupees? Where is the PM Cares Fund? Where is the Vista funds are coming? You ask them. Mukul Rai joined, it is final, and from our side we welcome, that is final. We are not here to satisfy you. I cannot satisfy the BJP media. Ask BJP why they are breaking the party in everywhere. We are not breaking the party. Now there is no situation that we are not majority. It is not that situation like BJP. What BJP do, we don't do it. Whatever we do, it is transparent policy. That it is not that we have the scarcity for membership and all this. That is not. It is his wish. It is his wish, his personal wish. He cannot stay with BJP. BJP is a party. It is not a party for the common people. It is a party for jamindars. It is a common party. It is a party for feudal landlord. And it is a party for only agency. So agency is, it is just mouthpiece of BJP. You people all know, but instead of that you are asking same question every day. Don't do it. तो जैसे कि आपने सुना कि ममता बनर्जी ने कहा कि वो मुकुल रॉय का स्वागत करती है। उनके हिसाब से जो है मुकुल रॉय एक बहुत ही अच्छे वरिष्ठ नेता है। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी में लोगों का शोषण होता है, इसीलिए लोग बीजेपी में नहीं रह सकते हैं, इसीलिए लोग अब टीएमसी का दामन थाम रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मुकुल रॉय की घर वापसी हुई है। आपको बता दें कि मुकुल रॉय के साथ उनके बेटे ने भी टीएमसी का दामन थामा है। तो इसके साथ ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि पार्टी को
दगाबाज लोगों को कभी अपने पास नहीं रखेगी। पार्टी के उस वक्त, चुनाव के वक्त जो लोग पैसे के लिए छोड़ के गए उनको पार्टी में कभी भी स्वागत नहीं किया जाएगा उनका। लेकिन मुकुल रॉय जैसे लोग जो हैं, जो वरिष्ठ नेता हैं, उनका स्वागत हमेशा जो है पार्टी करेगी। तो जैसे कि आपने सुना कि ममता बनर्जी ने जो है भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा की जो है पार्टी है वो एक ऐसी पार्टी है जहाँ पे लोगों का शोषण होता है और वहाँ पे लोगों का रहना काफ़ी मुश्किल है। साथ ही उन्होंने जो है मुकुल रॉय को घर का लड़का कहा है। उन्होंने कहा कि घर के लड़के की वापसी हुई है, मुकुल रॉय के साथ मेरा कोई मतभेद नहीं है। मुझे उन लोगों से दिक्कत है जिन्होंने पार्टी के साथ गद्दारी की है, जो कि इलेक्शन के वक्त पर पार्टी को पैसे के लिए छोड़ के गए हैं, और उन लोगों को मैं पार्टी में कभी नहीं आने दूंगी। इसके साथ ही इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो है मुकुल रॉय ने भी कुछ कहा है। तो आइए आपको सुनाते हैं कि क्या कुछ कहा है मुकुल रॉय ने। हम तो बीजेपी छोड़ के तृणमूल में आया है और अभी बंगाल में जो स्थिति है, ये स्थिति में कोई बीजेपी छोड़ बीजेपी में रहेगा नहीं। तो जैसे कि आपने साफ साफ शब्दों में सुना कि मुकुल रॉय ने कहा है कि अगर बंगाल की इस वक्त जैसी स्थिति है, ऐसे में कोई भी बीजेपी के साथ नहीं रहना चाहेगा। आपको बता दें कि ये राजनीति है, ये राजनीतिक मुद्दा है। कब कौन से पार्टी में चला जाए, इसका कोई भी हिसाब जो है नहीं मिलता है। आपको बता दें कि मुकुल रॉय का जो हिस्ट्री है वो एकदम एक अनोखा एक हिस्ट्री रहा है। वो बहुत दिन से राजनीति कर रहे हैं। सबसे पहले जब वो युवा थे तब उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन किया था, उन्होंने कांग्रेस के साथ काम किया था। उसके बाद फिर उन्होंने टीएमसी ज्वाइन की थी, उसके बाद फिर उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया था। आपको बता दें कि जब वो टीएमसी में थे तो ममता बनर्जी के बाद दूसरे स्थान पर मुकुल रॉय को लोग जानते थे। मुकुल रॉय को मतलब उस तरीके से लोग देखते थे, ममता बनर्जी के बाद ही मुकुल रॉय का नाम आता था। इसके बाद जो है उनको पार्टी से निकाल दिया गया, जिसके बाद उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर लिया और भाजपा में भी उनको 2020 में एक नेशनल वाइस प्रेसिडेंट जैसी एक अवधि जो है उनको मिली उनको। उसके बाद जो है अभी फिर से वो टीएमसी में वापस से चले आए हैं। तो ये जो राजनीति में जो है ये खेल हमेशा से देखने के लिए मिलता है। कोई एक शख्स होता है जो हमेशा जो है पार्टी बदलते रहता है अपने हिसाब से, अपने अकॉर्डिंगली, और उनके पास जो होता है अपने अपने व्यू पॉइंट होते हैं कि उन्होंने एक पार्टी से दूसरे पार्टी को क्यों बदला है। उनके पास खुद के रीजंस होते हैं। तो ये कभी भी मतलब फिक्स नहीं कहा जा सकता है कि अभी भी नहीं कहा जा सकता है मुकुल रॉय कब तक टीएमसी में रहेंगे और कब तक टीएमसी का दामन थाम के रखेंगे, ये तो वक्त के साथ ही पता चलेगा। तब तक के लिए देश और दुनिया से जुड़ी और अपडेट्स के लिए टीएनबी के साथ बने रहें। हमारे नए अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। साथ ही आप हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।